Very good morning to all. So today's topic is human resource management. In this topic, we will cover the basic concepts regarding the human resource, its meaning, definition, features, and scope. So let's start with the video. First of all is meaning of human resource management. Human resource means the employees working in the organization. So हर एक organization के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने employees को proper तरीके से manage करें, उनको motivate करें और उनको as a asset use करें organization के लिए, क्योंकि हर एक organization की success और failure depend करती है उसके employees के base के ऊपर। अगर आपके employees satisfied हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, then your organization will ultimately be on the right track. So human resource management is about people at work, both individual and group. So it involves training of the employees, development of the employees, performance appraisal, and all. Now coming to the definition part, Professor Edwin B. Flippo has defined human resource management as a process of planning, organizing, directing, controlling of procurement, development, compensation, integration, maintenance, and separation of human resource to the end that individual, organization, and social objectives are achieved. So see, according to this definition, we are planning how from where to get the human resource, we are organizing the activities of the human resource, then directing them so that they can do their work properly and providing them the proper compensation so that they should be involved in their career development also and the development or achievement of the organization goals also. Now coming to the features part. So first of all, human resource management is a universal force. Universal force means it is applicable to each and every organization. It is a universal concept. It is nothing like it can be applied in some particular organization or some particular area. It is universal in nature and it can be applied in each and every organization. Second is decision oriented. So human resource हम employees को इसी तरीके से manage करेंगे. We have to take the proper decisions for them at right time. Like we have to frame the policies for them. We have to frame the procedures for them. So it is a decision oriented approach. We will third point is focus on individual needs and aspirations. हमने यहाँ पे employee की needs की तरफ भी focus करना है कि उनको किस टाइम पे ट्रेनिंग चाहिए, किस टाइम पे उनकी नीड्स को डेवलप करना है, प्लस उनकी रेगुलर ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है, तभी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पॉसिबल हो सकती है. नेक्स्ट इज एम्प्लॉय ओरिएंटेड. यहाँ पे हमारा मेन फोकस होता है to have proper attention towards the employees working in the organization. मतलब उनको मोटिवेट करना, उनको प्रॉपर कंपनसेट करना, ठीक है, उनकी हर एक नीड्स को सेटिस्फाई करना, so that they should feel as a part and parcel for the organization and they should help towards the growth of the organization. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ओरिएंटेड. इसमें दोनों की डेवलपमेंट के बारे में देखा जाता है, एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट के बारे में भी प्लस ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के बारे में भी. बाइंडिंग फोर्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. सो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बाइंडिंग फोर्स का काम करता है बिकॉज एम्प्लॉयज को सेटिस्फाइड रखेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो राइट ट्रैक पर जा सकती है. Next is ongoing and forward looking nature. Ongoing means it is a continuous process. हम ये नहीं है कि HRM एक्टिविटीज आप एक दिन कर सकते हो बाकी दिन आप लीव कर दो. इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस प्लस इट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग. मतलब हमको फ्यूचर को एंटिसिपेट करके चलना होता है इसमें. नेक्स्ट इज importance of HRM. First is to maintain quality of work life. आपके एम्प्लॉयज के लिए वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए. अगर उनकी वर्क लाइफ अच्छी होगी, ओनली देन दे कैन अचीव देयर गोल्स, ओनली देन दे कैन परफॉर्म वेल. नेक्स्ट इज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट. एम्प्लॉयज अच्छे से सेटिस्फाइड होंगे तभी वो प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाएंगे. टू प्रोड्यूस एम्प्लॉयज हु आर एसेंशियली अडेप्टेबल टू चेंज. मतलब ये नहीं है कि हमने एज ओल्ड मेथड्स के साथ ही उनको काम करवाना है. टाइम टू टाइम उनकी डेवलपमेंट भी जरूरी है, टाइम टू टाइम चेंजेस भी जरूरी हैं. तो आपके एम्प्लॉयज इतने अडेप्टेबल होने चाहिए दैट दे शुड अडेप्ट द चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी एंड अदर थिंग्स. नेक्स्ट इज टू मैच द डिमांड एंड सप्लाई. जितनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट है ह्यूमन रिसोर्स की, उतनी प्रॉपर अवेलेबिलिटी ह्यूमन रिसोर्स की होनी चाहिए.
नेक्स्ट इज टू रिटेन द एम्प्लॉयज एंड मोटिवेट देम। रिटेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अगर उनको टाइम टू टाइम मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हो, देन दे विल फील मोटिवेटेड टू अकम्प्लिश द कंपनीज गोल, और आप उनको इजिली रिटेन कर सकते हो। टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, अगर उनकी नीड्स सेटिस्फाई हो रही हैं, उनको टाइम टू टाइम अच्छा पे स्केल, अच्छा बोनस वगैरह मिल रहा है, then they will feel a part and parcel for the organization, and all these things will help your business to sustain in the market. अब इसके स्कोप में मतलब क्या क्या चीजें इंक्लूड है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में? फर्स्ट ऑफ ऑल इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सबसे पहले आपको प्लान करना है कितने एम्प्लॉयज किन किन पोजीशंस के लिए आपको चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट इज जॉब एनालिसिस डिजाइन। जॉब एनालिसिस में हमने देखना है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब। एक जॉब के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और कौन कौन से स्किल्स उस एम्प्लॉय में चाहिए जिस जॉब का आप एनालाइज कर रहे हो। नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट इज मोटिवेटिंग द employees to apply for jobs in the organization, and selection means to select the best candidate out of the persons who have applied for the job. नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। इसमें जब आप एम्प्लॉयज आपके पास आ जाते हैं, आपने सिलेक्ट कर लिए, उनको कंपनीज के रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स के बारे में बताना, दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। देन नेक्स्ट स्टेप इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हो सकता है आपने जो एम्प्लॉय सिलेक्ट किए आपको फॉर द टाइम बिंग अपनी कंपनी के प्रोसीजर सिखाने के लिए उनको कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग देनी पड़े, या फ्यूचर में उनके स्किल्स डेवलप करने के लिए डेवलपमेंट प्रोसेस करना पड़े। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ HRM. Next is performance appraisal. Time to time employees की performance को check करना is also essential so as to see that they are whether they are working according to plans or not. ठीक है, तो वो सारा प्रोसेस आ जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में। नेक्स्ट इज कंपनसेशन प्लानिंग एंड रेम्यूनरेशन। फिर उसके बाद डिसाइड किया जाता है हाउ मच द एम्प्लॉय इज वैल्यूएबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और उस हिसाब से उसको कितना कंपनसेशन पे करना चाहिए, कितनी रेम्यूनरेशन देनी चाहिए। So this process will be covered in this part. Next is to motivate the employees to look after their welfare, to look after their health and safety measures. So all these things come under the scope of HRM. So this was today's topic. So next time we will meet with the new topic and new discussion. Thank you.